हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल नया चैप्टर जो है प्लांट किंगडम। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। सो R.H. Whitaker in 1969 suggested a five kingdom classification, right, which is includes Monera, Protista, fungi and Animalia and Plantae. एंड इन दिस चैप्टर विल बी स्टडिंग अबाउट प्लांट किंगडम। तो पहले दो चैप्टर में हमने मोनेरा प्रोटिस्टा कवर कर लिया है और फंगई भी कवर किया है, और अब हम जा रहे हैं प्लांट किंगडम की तरफ, राइट। सो इन दिस चैप्टर we'll deal in detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as plant kingdom. So मैं बिल्कुल मेन पॉइंट्स कवर करूंगी जो भी हाईलाइटेड है। So the cyanobacteria that are also referred to as Bruggelin algae are not algae. ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है कि जो साइनोबैक्टीरिया है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, वो एक एल्गी नहीं है, वो एक बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट, जो क्लासिफिकेशन था, द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number, shape of leaves, etc. They were based mainly on vegetative characters or on the androecium structure system given by Linnaeus, right? And such systems are artificial. They separated closely related species since they were based on few characteristics. तो जो artificial जो system था हमारा, they separated closely related species since they were based on few characteristics. तो इस system में बहुत कम characteristic लिए गए थे, ठीक है, to differentiate. तो ये हमारा artificial system हो गया. The artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristic. तो ये जो artificial system है, इसने equal weightage दिया वेजिटेटिव को भी एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी, ठीक है. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. तो ये अभी accepted नहीं है क्योंकि जो vegetative reproduction जो है वो बहुत easily अपने environment से affect हो जाता है, हर एक organism में बदलता रहता है. So ऐसे नए नए classification आते रहे. इसके अगेंस्ट हमारे पास आया natural classification system which was developed. Okay, so it was based on the natural affinities among the organisms and considered not only the external features but also the internal features like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry. तो जो artificial system है हमारा, उसमें क्या क्या था? It included vegetative and sexual characters जिसको equal weightage दिया था, ठीक है. और जो हमारा नेचुरल सिस्टम है, इट नॉट ओनली इंक्लूड्स एक्सटर्नल फीचर्स, आर्टिफिशियल में मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया था, बट इसमें एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ इंटरनल फीचर्स जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, इनको भी वैल्यू दिया. ऑलराइट. And such a classification for flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. And now at present, ये हमारे पास अभी ये वाला क्लासिफिकेशन है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यू ऑल नो कि ये एक ट्रैक है कि कहाँ से जो स्पीसीज हैं वो इवॉल्व हुई हैं. ओके, सो इट इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स. This assumes that organisms belonging to same taxa have a common ancestors. And we now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification. So these become more important when there is no supporting fossil evidence. Now let's move towards the numerical taxonomy, which is now easily carried out using computers. तो ये कंप्यूटर से के द्वारा, ठीक है, इसको हम क्लासिफाई करते हैं. स्पीसीज को हम पूरा डाटा कंप्यूटर में डाल देते हैं एंड कंप्यूटर के बेसिस जो कंप्यूटर है वो क्लासिफाई कर देता है, ठीक है. सो नाउ साइटोटैक्सोनॉमी, ये जो है इट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड
chemotaxonomy that uses the chemical constituents of the plant to resolve confusion are also used by taxonomists these days. तो अभी at present हम phylogenetic classification को use करते हैं. Alright. So now let's move towards the algae. So algae जो है they are chlorophyll bearing simple thalloid autotrophic. ये ऑटोट्रॉफिक है. क्या है? ऑटोट्रॉफिक. ये खुद का खाना खुद बनाते हैं. एंड लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन ऑर्गेनिजम्स. तो ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मरीन सी वाटर जो खारा पानी होता है उसमें भी पाए जाते हैं. एंड दे अकर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स जैसे कि मॉइस्ट स्टोन सॉइल्स वुड एंड सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगई. हमें ये फंगई के साथ भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में देखने को मिलता है और उसको हम बोलते हैं लाइकन. एंड एनिमल्स, हमें एल्गी एनिमल्स के भी ऊपर देखने को मिलता है. इसका एग्जाम्पल क्या है? स्लॉथ बियर. द एग्जाम्पल इज स्लॉथ बियर. Now, the form and size of algae is highly variable, ranging from colonial form. Volvox. Colonial form कौन सा है? ये MCQ क्वेश्चन है. Volvox. और filamentous form कौन सा है? Eulothrix. Filamentous form is Eulothrix. ये भी important MCQ क्वेश्चन है. So, we have colonial form में Volvox and filamentous form में Eulothrix and Spirogyra as well. A few of the marine forms such as kelps form massive plant body. Massive plant body कौन है? एल्गी में kelps. ये हम आगे पढ़ेंगे कि kelps किस में आता है, volvox किस में आता है, कौन सी एल्गी के अंडर आता है. Alright. The algae produced by vegetative, sexual and sexual methods. Vegetative, asexual and sexual methods. Okay. तो एल्गी के रिप्रोडक्शन के 3 मेथड्स हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन. जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो होता है फ्रेगमेंटेशन से. ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस. एल्गी में हर एक फ्रेगमेंट किस में डेवलप होता है? थैलस में. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स. अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. अलग अलग कौन से? वी हैव जूस्पोर्स. कॉमनली जूस्पोर्स. कॉमनली क्या है? जूस्पोर्स. और जूस्पोर्स कैसे होते हैं? दे आर फ्लैजिलेटेड which means they are motile and on germination gives rise to new plant. They gives rise to new plant. और ये तो हो गया असेक्सुअल. फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? इट टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स and these gametes can be flagellated, similar in size as seen in Eulothrix, right? तो ये सेम साइज के हो सकते हैं और फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं which is seen in case of Eulothrix. And ये नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज. तो ये नॉन मोटाइल है, इसमें फ्लैजिलाज नहीं है. तो ये हमें मिलेगा स्पायरोगायरा में. ऐसे स्पोर्स हमें स्पायरोगायरा में देखने को मिलेंगे. ठीक है. एंड सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, जिसमें दोनों गैमेट सेम होते हैं. ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? आइसोगैमस. राइट. फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज. अगर जो गैमेट्स हैं वो अलग अलग साइज के हुए, डिसिमिलर हुए, जो कि हमें यूडोरीना में दिखने को मिलता है. किसमें? यूडोरीना में. अनआइसोगैमस. And fusion between one large non-motile static female gamete and a smaller motile male gamete is termed as oogamous. तो same gametes होंगे तो isogamous, अगर dissimilar in size होंगे तो अनआइसोगैमस. तो ये बोल रहा है oogamous भी है. oogamous में क्या आएगा? The female gamete is non-motile and large. So the female gamete is large and non-motile, whereas the male gamete स्मॉल एंड मोटाइल. मोटाइल दिखाने के लिए हम फ्लैजिला लगा देते हैं. ठीक है. तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? oogamous, volvox एंड fucus.
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है algae are useful to man in variety of ways. At least half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae. तो हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एल्गी करता है, ये याद रखना, ये एमसी क्वेश्चन आ सकता है। थ्रू फोटोसिंथेसिस, राइट, बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, तो ये पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। दे आर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो वाटर बॉडीज होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनके लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, ये खाना बनाते हैं, ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनारिया एंड सरगैसम, पोरफायरा, लैमिनारिया एंड सरगैसम, इसको हम प्लस कैसे याद रखेंगे? दे आर अमंग 70 स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी विच आर यूज्ड एज फूड। तो ये प्लस जो है पोरफायरा, लैमिनारिया एंड सरगैसम, दे आर यूज्ड एज फूड। Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids, water holding substances. हाइड्रोकोलाइड्स यानी कि जो पानी को पकड़ के रखते हैं, हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंसेस। कैसे हैं ये सब्सटेंसेस, कौन से हैं? दे आर एल्जिन विच इज फाउंड फ्रॉम द ब्राउन एल्गी एंड कोराजिन जो कि हमें रेड एल्गी से मिलता है, ये याद रखना। एल्जिन हमें कहाँ से मिलता है? ब्राउन एल्गी से। एंड कैराजिन कहाँ से मिलता है? रेड एल्गी से। एंड दे आर यूज्ड कमर्शियली, ओके। अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स obtained from Giladium and Gracilaria, तो अगर हमें कहाँ से मिलता है? ये भी एमसी क्वेश्चन है। हमें मिलता है जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। एंड दीज टू जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स, जो माइक्रोबायोलॉजी में हम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया का जो हम कल्चर करते हैं उसमें जो एल्गी है, जो अगार है, वो काम आता है, ठीक है। सो एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, तो ये इसमें भी यूज होता है। क्लोरेला और यूनिसेलुलर एल्गी, क्लोरेला कैसा एल्गी है? यूनिसेलुलर एल्गी, रिच इन प्रोटीन एंड इट इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। तो जो क्लोरेला है हमारे पास, इट इज रिच इन प्रोटीन, so it is used as food supplement even by space travelers. And the algae are divided into 3 main classes: chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. चलो अब हम जल्दी जल्दी से ये तीनों क्लासेस को भी पढ़ लेते हैं, राइट। सो हमारे पास है अब क्लोरोफाइसी।